Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel Rehnumai Tib. Myself Ms. Barao from batch 2021-22. Today our topic of discussion is the most crucial topic, which is postpartum hemorrhage, जिसको हम यूनानी में जरेयान दम बाद वलादत भी बोलते हैं. We'll study this topic under few subheadings, which is introduction, classification, causes, diagnosis, clinical effects, prevention and management. Now first of all, we'll talk about the definition of PPH. So since you guys can see that it is a huge definition, we'll break it into few segments and then we'll understand the meaning and we'll compile it together. So the first section of this definition is what is PPH? PPH is any amount of bleeding which is coming from the genital tract following the birth of the baby up to the end of the purpurium, which is it is a time phrase of immediately after the birth up to 6 weeks of the childbirth. So the first segment of this definition is any amount of bleeding which is coming from the genital tract after the birth of the baby up to the end of the purpurium. So second section of this definition is that it adversely affects the general condition of the patient. Third section of this definition is it is evidenced by rise in the pulse rate whereas falling of the blood pressure. So what are the three sections of the definition is कोई भी amount of bleeding हो रही है from the genital tract following the birth of the baby up to the end of the purpurium. It is first section of the definition. Second, it is affecting the general condition of the patient. And third section, it is evidenced by rise in the pulse rate whereas falling of the BP. So it is known as postpartum hemorrhage. Now if we talk about in terms of blood loss, so any amount of blood loss which is the ranges are giving here. So if the blood loss is more than 500 ml after the 24 hours of vaginal delivery, so we'll call it as postpartum hemorrhage. Other thing is if the blood loss is more than 1000 ml after the cesarean section, then also we'll call it as PPH. And if the blood loss is more than 1500 ml after hysterectomy, then also we'll known it as PPH. Now if we talk about its incidence, so WHO states that 25% of all the maternal deaths which is occurring in our country is due to PPH, which is accounting more than 1 lakh maternal deaths per year. According to Datta, the incidence rate is about 4 to 6% of all the deliveries. Now if we talk about the classification of PPH, so it's basically of two types, primary PPH and secondary PPH. Primary PPH is when the hemorrhage is occurring within 24 hours following the birth of the baby. जब भी हमारा hemorrhage हो रहा है 24 hours के अंदर following the birth of the baby, we'll call it as primary PPH. Secondary कब कहेंगे? जब हमारा hemorrhage हो रहा है beyond the 24 hours within the period of purpurium. 24 आवर्स के तो बाद में, लेकिन हमारा जो परप्यूरियम का पीरियड है उससे पहले, तो इसको हम बोलेंगे डिलेड और लेट प्यूप्यूरल हेमरेज. नाउ द प्राइमरी पीपीएच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, विच इज थर्ड स्टेज ब्लीडिंग और थर्ड स्टेज हेमरेज. And second division is true hemorrhage. Third stage hemorrhage is said when the bleeding is occurring before the expulsion of the placenta, whereas true hemorrhage is called when the bleeding is occurring after the expulsion of the placenta. If we talk about the causes of PPH or primary PPH, is there is one mnemonic which is the 4 important T's we have to remember for the causes of PPH. So the first T stands for tone. It means the uterus tone is getting disturbed. अब यूट्रस एटोनिसिटी हम टोन में जब भी डिस्टर्बेंस होगा तो हम यूट्रस एटोनिसिटी बोलेंगे. यूट्रस एटोनिसिटी हम कब बोलते हैं? जब यूट्रस अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता प्रॉपरली.
सेकेंड टी स्टैंड फॉर टिश्यू रिटेन, कोई भी हमारा टिश्यू कॉटिलिडन या कोई भी फीटल मेम्ब्रेन अगर हमारे यूट्रस में रिटेन कर जाती है तो वो भी हमारी लीड करेगी किसको, प्राइमरी पीपीएच को। थर्ड टी स्टैंड्स फॉर ट्रॉमेटिक, कोई भी जेनाइटल ट्रैक्ट में इंजरी हो रही है या फिर एपिजियोटमी में कोई भी वुंड्स की वजह से कोई इंजरी हो रही है तो वो ट्रॉमेटिक में आएंगे। थर्ड टी स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बिन, यानी कोई ब्लड कोगुलोपैथी हो रही है। अब ब्लड कोगुलोपैथी दो तरह से हो सकती है, या तो हमारे प्रोकोगुलेंट्स का लेवल डिक्रीज हो जाए या फिर जो हमारी फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी है उसका इंक्रीज हो जाए। नाउ विल मूव ऑन कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है विच इज़ एटोनिक यूट्रस। अब एटोनिक यूट्रस किस वजह से हो रहा है, क्या चीज़ें लीड करती हैं एटोनिक यूट्रस होने के लिए। तो सबसे पहले है ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, तो यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड हो जाए। अब यूट्रस के ओवर डिस्टेंड होने से होगा क्या कि यूट्रस फ्लैबी हो जाएगा और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर डिस्टेंशन को लीड करती हैं यूट्रस के, क्या कि अगर आपका बेबी का वेट 4 kg से ज़्यादा है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है तो इन कंडीशन में क्या होता है, ओवर स्ट्रेचिंग होती है यूट्रस की और कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है। सेकेंड कॉज जो है एटोनिक यूट्रस का दैट इज़ ग्रैंड मल्टीपेरा। अगर कोई फीमेल 4 से 5 डिलीवरी ऑलरेडी कर चुकी है तो उसका जो यूट्रस है वो ओवर डिस्टेंडेड हो चुका है और इसकी वजह से वो फ्लैबी हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी। थर्ड थिंग विच इज़ लीडिंग टू एटोनिक यूट्रस इज़ द माल न्यूट्रिशन और अनीमिया। अगर पेशेंट पहले से ही अनीमिक है और कोई भी, क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है तो अगर थोड़ा सा भी अमाउंट में ब्लड लॉस होगा तो उसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगी पीपीएच की। फोर्थ थिंग इज़ प्रोलॉन्ग लेबर। अगर पेशेंट बहुत टाइम से लेबर में है और क्योंकि हमारी यूट्रस की जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं और कोई भी स्मूथ मसल बहुत सारी विगरस एक्टिविटी के बाद फटीक हो जाती है, तो ऐसे ही प्रोलॉन्ग में लेबर में होगा कि यूट्रस की मसल्स फटीक हो जाएंगी और डिस्टर्ब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, सिंस हमारा क्या लीड करेगा, एटोनिक यूट्रस। फिफ्थ थिंग इज uterine fibroids. Uterine fibroids you can see in this image. These are uterine fibroids. अब ये क्या कर रहे हैं, these masses what they are doing is they cannot letting the muscles to contract and retract properly, so the uterus is becoming atonic, which is the major cause of PPH. Other is the antepartum hemorrhage also causes the uterus atonicity and previous history of PPH. Now the diagnosis of primary PPH. So majority of the cases में हमें क्या मिलता है कि vaginal bleeding visible होती है, लेकिन बहुत ही कम cases ऐसे होते हैं जिसमें vaginal bleeding पूरी तरह से concealed होती है, जैसे कि vulvovaginal और broad ligament hematoma में bleeding totally concealed होती है। अब हमें यूट्रस की स्टेट कैसी मिलेगी, तो इन ट्रॉमेटिक हेमरेज हमें यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगा, लेकिन एटोनिक हेमरेज में हमें यूट्रस फ्लैबी मिलेगा और जब हम उसको मसाज करेंगे तो वो हार्ड होगा। नाउ प्रिवेंशन, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन है और इसको प्रिवेंट करना इजी नहीं है, सिंस हम कुछ जनरल मेजर्स ले सकते हैं टू अवॉइड इट्स इंसिडेंट्स और मैग्नीट्यूड को हम कम किया जा सकता है कुछ मेजर्स लेके। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीनेटल केयर की। तो एंटीनेटल केयर में सबसे पहले हमें इम्प्रूवमेंट करना है हेल्थ स्टेटस का। फीमेल का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट उस लॉस को विदस्टैंड कर सके। सेकेंड थिंग इज़ हाई रिस्क पेशेंट। तो जो पेशेंट हैं मैक्रोसोमी के, यानी जिसमें फीटस का जो साइज़ होता है वो 4 kg से ज़्यादा होता है, और ट्विन प्रेगनेंसी के केसेस में या फिर सीवियर अनीमिया के केसेस में क्या होता है कि हमें पेशेंट को वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में डिलीवरीज़ के लिए ले जाना पड़ता है। ब्लड ग्रुपिंग, सारी विमेंस में ब्लड ग्रुपिंग करानी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हम अगर पहले से ही ब्लड ग्रुपिंग करा के रखेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा अगर आगे सीरियस होती है कंडीशन। अगर हम इंटरनेटल केयर की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें एक्टिव मैनेजमेंट करना है ऑफ द 3rd स्टेज लेबर। दूसरी चीज़, जो केसेस हो रहे हैं इंड्यूस लेबर से, मतलब ऑक्सीटोसिन देके इंड्यूस करा रहे हैं लेबर, उन केसेस में हमें इन्फ्यूजन कंटिन्यू रखना है
1 घंटे तक आफ्टर द डिलीवरी। थर्ड थिंग इज़ एक्सप्लोरेशन, पूरा हमारा यूट्रो वजाइनल ट्रैक पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उसमें कोई वुंड्स तो नहीं है, कोई जेनाइटल ट्रैक्ट इंजरी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से PPH हो सकता है। अब मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट में हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ब्लीडिंग में 3 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले कि हमें यूट्रस के सारे कंटेंट्स को एक्सक्लूड आउट कर देना है ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर सके। दूसरा, हमें जो ब्लड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना है। एंड थर्ड थिंग, टू इंश्योर इफेक्टिव हीमोस्टेसिस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ट्रू। अभी मैनेजमेंट हम लास्ट में भी एक फ्लो चार्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जनरल मेजर्स बता रखे हैं कुछ ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, मैंने 2 बार पहले भी बताया, तो क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन है हम इसको सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते हैं हैंडल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा हेल्प के लिए बुलाएंगे एक्सपर्ट्स, ऑब्स्टेट्रिशियंस को बुलाएंगे, सीनियर स्टाफ्स को, सीनियर नर्सेज को हेल्प के लिए। दूसरा, हमें 2 IV लार्ज बोर्ड लाइंस देनी है। पहला हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और दूसरी लाइन जो देनी है, ये हमने कैनुला की इमेज भी लगाई है, दैट इज़ 14 गॉज कैनुला। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए देनी है एक लाइन, और दूसरी लाइन हमें देनी है क्रिस्टलाइन सोल्यूशन के लिए, जिसमें नॉर्मल सलाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें कि हमें पेशेंट को फ्लैट रखना है और वार्म रखना है, और इन्फ्यूजन करना है हमें 2 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन का और प्लाज्मा का। फोर्थ थिंग इज़ हमें ब्लड को सेंड करना है ब्लड टेस्ट के लिए, ब्लड काउंट के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रॉस मैचिंग के लिए। ऑक्सीजन देनी है हमें 10 to 15 लीटर्स पर मिनट बाय मास्क। सो कॉजेज़ फॉर सेकेंडरी PPH, सबसे हमने प्राइमरी PPH में बात करी थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या था प्राइमरी हेमरेज में, वो था हमारा एटोनिक यूट्रस। सेकेंडरी हेमरेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है हमारा रिटेंशन ऑफ द बिट्स और कॉटिलेडन्स, या फिर कोई भी फीटल मेम्ब्रेन जो रिटेन कर रही है यूट्रस में। दूसरा, एंडोमेट्राइटिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज। अब हमने, क्योंकि उसमें डायग्नोसिस अलग थी और इसमें जो हमारा सेकेंडरी हेमरेज है इसकी डायग्नोसिस अलग है। इसकी डायग्नोसिस में हमें क्या देखना है कि जो ब्लीडिंग होगी वो ब्राइट रेड कलर की होगी, ऑफ वेरिंग अमाउंट, किसी भी अमाउंट की हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकती है, और हमें सीवियर अमाउंट में जो अनीमिया है उसकी वेरिंग डिग्री मिल सकती है। एविडेंस हमें सेप्सिस के मिलेंगे, और इंटरनल एग्जामिनेशन में हमें सेप्सिस मिलेगा और पस्चुलस सर्वाइकल ऑस मिलेगा। और USG हम कराएंगे किसके लिए, कोई भी प्लेसेंटा या कोई भी बिट्स, कॉटिलेडन्स, कोई भी फीटल मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है यूट्रस में तो उसके लिए हमें USG करानी होगी, और USG डिटेक्ट करेगी पीसेस को। नाउ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी PPH 2 प्रिंसिपल्स हैं इसमें। पहला प्रिंसिपल है कि हमें असेस करना है जो भी अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है और उस लॉस को हमें रिप्लेस करना है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। दूसरा प्रिंसिपल है इसमें, हमें आइडेंटिफाई करना है कॉज को और उसको अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं उस कॉज को रेक्टिफाई करने के लिए। दिस इज़ द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रू PPH। इसमें सबसे पहले हमने पिछली स्लाइड्स में भी बात की थी कि इमीडिएट मेजर्स हैं कुछ, जिसमें क्या है हमारा कि हम एक्स्ट्रा हेल्प के लिए बुलाना है लोगों को, जिसमें हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स, सीनियर नर्सेज और स्टाफ को बुलाएंगे। दूसरा, 2 IV बोर्ड लाइंस जिसकी हमने बात करी थी, 1 हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एंड 2nd फॉर द नॉर्मल सलाइन। थर्ड थिंग इज़ ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड टेस्ट के लिए हम ब्लड को सेंड करेंगे फॉर इन द लेबोरेटरीज। फोर्थ, हम इन्फ्यूजन देंगे 2 लीटर्स ऑफ नॉर्मल सलाइन का। अब जब हम यूट्रस को पाल्पेट करते हैं एब्डोमिनली तो हमें 2 चीज़ें मिल सकती हैं, या तो यूट्रस एटोनिक मिलेगा या फिर यूट्रस हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगा। अगर यूट्रस एटोनिक मिलता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको मसाज करना है, उसकी एंटीरियर वॉल को अपने हैंड से फंडल मसाज देना है। सेकेंड थिंग, हमें ऑक्सीटोसिन देना है उसको 10 to 20 यूनिट्स इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन।
इंजेक्शन हमें मिथार्जीन का देना है विच इज़ 0.2 mg IV। मिथार्जीन में हमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये याद रखनी है कि कोई भी CVD के जो पेशेंट होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के या हाइपरटेंसिव जो पेशेंट हैं, उनमें हम मिथार्जीन को अवॉइड करेंगे क्योंकि वो मसल स्पाज्म करती है। नेक्स्ट थिंग इज़ टू एग्जामिन, हम पूरा प्लेसेंटा एग्जामिन करेंगे कि कोई बिट्स या पीसेस तो नहीं है यूट्रस में जो कि कॉज कर सकते हैं PPH। लास्ट थिंग इज़ हम कैथेटराइज करेंगे ब्लैडर को। ब्लैडर को कैथेटराइज करने का मकसद ये है कि अगर यूट्रस फिल्ड, अगर हमारा ब्लैडर फिल्ड होगा यूरिन से, तो वो प्रेशर डालेगा यूट्रस पे, और यूट्रस तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहा है। तो और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस हो रहा है इस कंडीशन में, तो हमें उसके यूरिन आउटपुट को भी चेक करते रहना है पेशेंट के कि कितना यूरिन आउटपुट बन रहा है। अगर इतने मेजर्स लेने के बाद स्टिल हमारा यूट्रस एटोनिक कंडीशन में होता है तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे पूरे यूट्रस का और जेनाइटल ट्रैक्ट का। दूसरा, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, और तीसरा, हम कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीटोसिन को, अगर इन 5 मेजर्स के बाद भी यूट्रस एटोनिक कंडीशन में है। अगर ये अब 3 कंडीशन हमने इसके बाद फॉलो करी है, अब इन 3 कंडीशन के फॉलो करने के बाद भी यूट्रस एटोनिक रहता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 15 मिथाइल PGF2 देंगे विच इज़ हमें 250 माइक्रोग्राम्स देनी है IM, और हमें मीसोप्रोस्टोल देनी है 1000 mg रेक्टली, क्योंकि वजाइनली तो हम दे नहीं सकते क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए रेक्टल देंगे। अब यूट्रस एटोनिक, अगर इन 2 मेडिसिन के बाद भी यूट्रस एटोनिक रहता है तो हमें यूट्राइन टेम्पोनेट यूज़ करनी है। उसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, बाय मैनुअल कंप्रेशन मेथड आता है, जिसको आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये हम दोनों हैंड यूज़ करते हैं टू कंप्रेस बोथ ऑफ द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। एक हैंड से हम फिस्ट बनाएंगे और उसको वजाइनली इंसर्ट करेंगे, जबकि दूसरे हैंड को हम एंटीरियर वॉल पे प्रेशर डालेंगे यूट्रस की। इससे क्या होगा, जो दोनों वॉल्स हैं यूट्रस की वो अपोज होंगी, और जो ओपन साइनसेस हैं वो ऑक्लूड होंगे और ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसमें एक और मेथड है, दैट इज़ बलून टेम्पोनेट। इसका एक एग्जाम्पल भी है, दैट इज़ बाकरी बलून। ये एक पिक्चर है बलून की, दैट इज़ बलून टेम्पोनेट। इसमें क्या होता है कि एक बलून होता है, और वो हम जब इंसर्ट करेंगे यूट्रस में तो वो डिफ्लेटेड होगा, मतलब उसमें वो फ्लैट होगा बिल्कुल। और जब हम उसको इंसर्ट करेंगे, और उसमें एक स्ट्रिंग अटैच होती है जिसको ड्रेन ट्यूब भी बोलते हैं, एक कैथेटर भी अटैच होता है। अब जब ये इंसर्ट कर देंगे हम, तो इसको ये इन्फ्लेट हो जाएगा विद द नॉर्मल सलाइन, और ये जो एक ट्यूब आपको ऊपर दिख रही है ये वाली, तो यहाँ पे जितना भी कलेक्टेड ब्लड है वो सब ड्रेन करने के लिए ये ड्रेनिंग ट्यूब है। इससे कोई भी अमाउंट में ब्लड होगा तो वो सब ड्रेन होके बाहर आ जाएगा। अगर स्टिल यूट्रस एटोनिक रहता है, हमें सर्जिकल मेथड्स की तरफ मूव ऑन कर जाना है, जिसमें हम लाइगेशन कर सकते हैं यूट्राइन आर्टरी का, और लाइगेशन कर सकते हैं एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी का, और बी लिंच कर सकते हैं। स्टिल अगर इन सारे मेजर्स को लेने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही है, तो हम अपना जो लास्ट एंड स्टेज है, दैट इज़ हिस्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस करेंगे। अगर यूट्रस हार्ड है, अब ये वाली कंडीशन हमने सारी मैनेजमेंट कब किया, जब यूट्रस एटोनिक था। अगर यूट्रस हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड है, उसमें हमें सिर्फ एक्सप्लोरेशन करना है जेनाइटल ट्रैक्ट का, और हीमोस्टैटिक सूचर्स देने हैं हमें, जहाँ पे भी टीयर साइट है वहाँ पे हमें सूचरिंग करनी है। इसमें क्योंकि हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड है तो इसमें एक्सप्लोरेशन और एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now we will end our topic with some MCQs which is based on this topic. So I want all of you guys to give your answers in the comment section. So first question is, which of the following is the best initial management steps for the women with suspected uterine atony causing postpartum hemorrhage immediately after the delivery? And these are your 4 options. Second question is,
A 34-year-old woman undergoes a prolonged induction of labor for post-dates and delivers a 4.5 kg infant vaginally. Soon after the delivery, she develops heavy vaginal bleeding due to uterine atony. Which of the following risk factors most likely to contributed to her postpartum hemorrhage? And the last question is, a 20-year-old woman has a vaginal bleeding after an uncomplicated labor. 10 minutes later, she has heavy vaginal bleeding with passage of large clots. Her uterus is soft, enlarged and above the umbilicus. What is the most likely primary cause of this postpartum hemorrhage? This is the very easy question in all of the three. And thank you for the video, and I want you guys to share it and like it.